کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے لوگوں پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کر دے ان سے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کرنے کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غلطی کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ اس سے درگزر کر دیں، اور پھر درگزر کرنے کے بعد اگر کوئی دین پر نہ چلے تو اس سے تعلق نہ توڑیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر بولنا، ان کے گھر آنا جانا سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تعلق توڑ لو گے تو پھر اسے دین کی طرف دعوت کیسے دو گے؟ تعلق کو جوڑے رکھیں، دین کی طرف بلاتے رہیں، اسے تبلیغ کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک دفعہ کا بلانا انہیں اثر نہ کرے، دو دفعہ کا بلانا اثر نہ کرے، ایک نہ ایک دن آئے وہ آپ کی دعوت پر آ ہی جائیں۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ سو قسم ہے اس پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کریں۔ ان آیات کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ایک آدمی کے کھیت کو سیراب کرنے والے کے پانی پر ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جب معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور فیصلہ دیا، تو فیصلہ اتفاقی طور پر حضرت زبیر کے حق میں آ گیا۔ اس پر ایک اور آدمی نے تبصرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایمان کا معیار بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انہوں نے انصاف کے ساتھ کیا ہے، آپ کی سنت پہ آپ نے اور میں نے چلنا ہے۔ اگر احادیث صحیح نہ ہوتی، اگر احادیث میں کوئی غلطی ہوتی تو بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ نہ کہتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے صحابی تھے جو احادیث لکھا کرتے تھے، تو لوگوں نے، کچھ صحابہ نے انہیں کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں تو تم ساری لکھ لو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے احادیث لکھنی کیوں چھوڑ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سنت، اس پر منوعاً آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے اور ہمیں انہیں ماننا بھی چاہیے۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے۔ اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ آیت نمبر ہے 69 سورۃ النساء۔ یہ جواب ہے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں نیک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, अल्लाह उन्हें उन लोगों के साथ दाखिल करेगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। कौन है इनाम याफ्ता? अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकीन में से, वश्शुहदाई, शहीदों में से, वस्सालिहीन, और नेक लोग, व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, ये बेहतरीन रफ़ीक हैं। हमें पता लग गया वो रास्ता जिस पर जिन लोगों ने इनाम पाया, उनका रास्ता। तो हम भी कोशिश करें कि हम उसी के रास्ते पर चलें। और एक और भी चीज़ याद रखें कि हमेशा आदमी अपने साथी के दीन पर होता है। हदीस में आता है अलमरउ मा मन अहब, कि आदमी उसी के साथ होगा क़यामत के दिन जिससे उसको मोहब्बत होगी। आप और मैं अपनी मोहब्बतों के मेयार चेक कर लें कि हमें किसकी रफ़ाकत पसंद है, हमें किन लोगों के साथ उठना बैठना या मेल मिलाप पसंद है। क्योंकि हदीस के मुताबिक जो जिसको पसंद करता है वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। और आता है कि जब ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो सहाबा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो कहते हैं कि हम तो आपकी रफ़ाकत जन्नत में पसंद करते हैं, हम तो चाहते हैं हम जन्नत में आपके साथ हों। और आप और मैं भी यही ख्वाहिश करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब करे, हमें हमारी सहाबियात और उम्महात से मुलाकातें नसीब करे, हमें उनका साथ आखिरत में नसीब करे इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है और काफ़ी है अल्लाह ताला जानने वाला। ए मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू खिज़रकुम, अपने बचाव का सामान ले लो, फिर ग्रोह ग्रोह बनकर कूच करो या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। और यकीनन तुम में से बाज़ वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फ़ज़ल किया कि मैं उनके साथ मौजूद नहीं था। यहाँ फिर मुनाफिकीन का जिक्र आ गया कि मुनाफिकीन जंगों में जाने को उनका दिल नहीं करता था। और वो कहते थे अगर कोई नुकसान होता वो कहते शुक्र है मैं साथ नहीं गया, मैं होता तो ये नुकसान हो जाता। अल्लाह कह रहा है अगर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें कोई फ़ज़ल मिल जाए तो ये तुमसे ऐसी दोस्ती करते हैं जैसी दोस्ती होती है। काश मैं भी इनके हमरा होता तो बड़ी कामयाबी को पहुँचता। जब माले गनीमत आता था तो तब कहते थे कितनी अच्छी बात होती कि हम भी साथ होते, हमें भी इसमें से मिलता। बस जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए शहादत पा जाए या गालिब आ जाए, यकीनन हम उसे बड़ा सवाब अता करेंगे। भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में इन नातमाम मर्दों, औरतों और नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद ना करो, जो यूं दुआएं मांग रहे हैं, ए हमारे परवरदिगार इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे और हमारे लिए ख़ुद अपने पास से हमायती मुकर्रर कर दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से मददगार बना। आजकल के ज़माने में आप और मैं जानते हैं शाम है, फ़लस्तीन है, बर्मा है, कश्मीर है, कितने ही ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों के बच्चों की ज़ुबानों पर यही दुआएं हैं कि अल्लाह कोई भेज जो हमें इन ज़ालिमों की बस्ती से निजात दिलाए। अल्लाह हमारे मर्दों में ईमान की कुव्वत इतनी पैदा करे, अल्लाह हमारे मुल्क को इतनी इस्तकामत दे कि हम इन लोगों के लिए और इनकी दुआओं की कबूलियत के लिए कुछ कर सकें। दुआएं तो अल्लाह ने कबूल करनी, पर हम कोशिश करेंगे तो हम इनका साथ दे सकते हैं। अगर हम करे कोई फ़ायदा नहीं। जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं और जिन लोगों ने कुफ़र किया वो अल्लाह ताला के अलावा औरों की राह में लड़ते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो। यकीन मानो शैतान ही यकीनन सख्त कमज़ोर है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को रोक रखो, नमाज़ें पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो। फिर जब इन्हें जिहाद का हुक्म दिया तो उसी वक्त उनकी एक जमात लोगों से इस कदर लड़ने लगी जैसे अल्लाह ताला का डर हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और कहने लगे ए हमारे रब, तूने हम पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया है, क्यों हमें थोड़ी सी ज़िंदगी और ना जीने दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए दुनिया की सूदमंदी तो बहुत ही कम है और परहेज़गारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है और तुम पर एक धागे के बराबर भी सितम रवा ना किया जाएगा। शुरू में
जब मुसलमानों का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तबलीग की हुक्म दिया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, उस वक्त के मुसलमानों को कहा गया था कि हाथों को रोक के रखो। मक्का में जिहाद की इजाज़त नहीं थी क्योंकि लोग कम थे और ना लोग ज़्यादा थे और ना ही उनके पास इतने वसाइल थे कि वो जंग कर सकें। तो यहाँ उस चीज़ का ज़िक्र आया, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, गो तुम मजबूत किलों में हो, और अगर उन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो ये कहते हैं कि ये तेरी तरफ से है। उन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के करीब नहीं आते। तुम्हें जो भी भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे इन तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह ही गवाह है। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, उस रसूल की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह की इताअत की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको कुछ इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया शरीयत और अहकामात का। अब इताअत आपने और मैंने करनी है, और आपने और मैंने शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने मर्जी नाकाम हो जाएं, हमें जितनी मर्जी आजमाइशें आ जाएं, हम अगर दीन पर चलते रहेंगे, हम दीन पर साबित कदम रहेंगे, हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर चलते रहेंगे, तो हमारा ईमान है कि हम कामयाबी पाएंगे। ये कहते हैं कि इताअत है, ये तो कहते हैं कि इताअत है, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें एक जमात जो बात आपने कही या उन्होंने कही उसके खिलाफ रातों में मशवरे करती है। यहाँ मुनाफिकीन की बात और इनकी रातों की बातचीत अल्लाह लिख रहा है, तो आप उनसे मुंह फेर लें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अल्लाह कारसाज काफ़ी है। मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या था कि मुनाफिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते, वहाँ तो बातें सुन लेते, बाद में इकट्ठे होकर मशवरे करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आप मुनाफिकीन से मुंह फेर लें, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, आपको अल्लाह ताला ही कामयाबियाँ देगा। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? और ज़रा रुक के सोचें कि आप और मैं तदब्बुर करते हैं कुरान पर? कुरान की इतनी आयत हमने पढ़ ली, कितनी आयत में तो ऐसा लगता है आपकी और मेरी कहानी। हमें अल्लाह ताला ने समझाने की कोशिश की। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे बेहतरीन तदब्बुर अता करे, हमें कुरान को बेहतरीन तरीके से समझने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी ऐसा बनाए कि वो दीन को समझ कर पढ़ें। हमारी औलादों के दिमागों में ये ना हो कि हमने कुरान ख़त्म करना है, हमारी औलादों के दिमाग में ये हो कि हमने कुरान को समझ कर उस पर अमल करना है। अगर ये अल्लाह ताला के अलावा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें वो बहुत सारे इख्तलाफात पाते। जहाँ इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने इसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुँचने वालों के हवाले करते तो इसकी हकीकत वो मालूम कर लेते जो वो नतीजा अख्ज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। तो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहो, तुम्हें सिर्फ अल्लाह की ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाते रहो। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफ़िरों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला और सख्त सज़ा देने वाला है। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे उससे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। आपके और मेरे लिए है ये आयत। अगर आप और मैं किसी को नेकी की तरफ बुलाएंगे और वो जो नेकी करेगा उसका अजर भी हमें मिलेगा, और जो बुराई और बदी की सिफारिश करे उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। जैसे हमने कल बात की थी कि अगर आप गाना लगाते हैं अपने घर में और गाने की या आपके डेक की आवाज़ इतनी ऊंची है कि पूरा मोहल्ला वो गाने सुनता है, या आपकी टैक्सी रिक्शे में आपका गाना बज रहा है, या आपके मोबाइल पे स्टेटस पे म्यूज़िक लगा हुआ है, तो जो म्यूज़िक जो सुनेगा उसको गुनाह मिलेगा। अगर आपने एक इस्लामिक चीज़ लगाई और एक अच्छी चीज़ लगाई और उसे पढ़ के कोई उस पर अमल करेगा तो उसका अजर भी आपको मिलेगा। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी को नेकी की दावत दें।
जब एक बंदा नेकी की दावत, फ़र्ज़ करें आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो जितने पारे आप लोग सुनेंगे और आपका जितना अमल बदलेगा, जितना आपका दिल बदलेगा, उस सारे का अजर इस इदारे को भी जाएगा, यहाँ आपको बताने वाले पे भी जाएगा, यहाँ आपको बुलाकर लाने वाले पे भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमने अपनी नेकियों को बढ़ाना है, लिहाजा लोगों को दीन से मोहब्बत करना सिखाएं। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बिलाशुबह अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। हम सलाम क्या करते हैं? हमें कहा जाता है, अगर कोई आप किसी को सलाम करते हैं, इस्लाम ने कहा, कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप मुकम्मल सलाम दें। सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने पर 10 नेकियां मिलती हैं, और फिर जैसे जैसे पूरा कहेंगे तो 30 नेकियां हो जाएंगी। अगर आप सलाम किसी को करते हैं तो मुकम्मल अच्छे तरीके से सलाम करें। हमारे यहाँ माएँ क्या सिखा रही होती हैं बच्चे को, बेटा आंटी आई हैं, शामालिकुम करो, छामालिकुम करो। हम कहते हैं ना ऐसे अपने बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं, कहो बेटा छामालिकुम। और खुद अगर पढ़ लिया, 2 क्लासें 4 क्लासें पढ़ ली और कॉल आ गई तो अटेंड करके अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कितने ऐसे लोग हैं जो सलाम गलत देते हैं, बल्कि मेजॉरिटी लोग सलाम गलत देते हैं। सलाम में सीन पे तशदीद है और सीन की तशदीद को हम मिस कर देते हैं। बाज़ दफ़ा हम अलिफ और लाम को भी मिस कर देते हैं। हम अस्सलाम वालेकुम के बजाय अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, और अस्सलाम वालेकुम और सलाम वालेकुम और पता नहीं क्या कुछ। तो आपने और मैंने सलाम को ठीक करना है, पूरा बोलें अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ अगर इतना भी बोल लें तो ठीक बोलें, गलत ना बोलें। हमारे यहाँ ये भी कंसेप्ट है कि अगर हम पूरा सलाम करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत बड़ी आलिमा है, ठीक है, पूरा सलाम करिए। हमारे यहाँ पूरा सलाम करने को भी ना इस नेगेटिव वे में देखा जाता है कि पूरा सलाम कर रहे हो, खैर ते है हाजी साहब, आज ते पूरा सलाम कीता ने। ये नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें सलाम मुकम्मल देना है क्योंकि हमने अपनी नेकियों में इजाफा करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पूरा सलाम देने की कोशिश करें और कोशिश करें कि सलाम को ना बिगाड़ें। अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो तुम सबको यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्ची बात करने वाला कौन होगा? तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में 2 ग्रोह हो रहे हो? इन्हें तो उनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने ऊंधा कर दिया। अब क्या तुम ये मंसूबे बांध रहे हो कि अल्लाह ताला के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर लाओ? जिससे अल्लाह ताला राह से भटका दे तो हरगिज़ उसके लिए कोई राह तुम ना पाओगे। उनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं, तुम भी उनकी तरह कुफर करने लगो, फिर सब एक हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन ना छोड़े, इनमें से किसी को हकीकी दोस्त ना बनाओ। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इन्हें पकड़ो और कत्ल करो, जहां भी ये हाथ लग जाएं। खबरदार इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न समझ बैठना, सिवाय उसके सिवाय उनके जो उस कौम से ताल्लुक़ रखते हों जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका, और जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने से तंग दिल हैं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई लड़ाई की राह नहीं की। यहाँ पर ख़ास कंडीशंस थी, ख़ास कमांडमेंट्स भी थी कि आपने करना क्या है कि अगर जंग उस वक्त तो इसी तरह होता था कि कबीलों के हिसाब से जंगें होती थी। जंग करने के लिए कहा गया कि अगर एक कबीला आपसे जंग नहीं करना चाहता, वो कहता है हम इस्लाम भी नहीं लाते, हम आपको तंग भी नहीं करते, आप उससे जंग नहीं करेंगे। अगर एक कबीले से आपका मुआहदा हो चुका है कि हम इतने साल तक जंग नहीं करेंगे, ना तुम हमें छेड़ोगे ना हम छेड़ेंगे, फिर ठीक है। जंग उसी सूरत में की गई जब कोई आपके खिलाफ तलवार उठाए या जब कोई आपके खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयारी कर रहा हो। इन 2 सूरतों में मुसलमानों ने जंग की। तुम कुछ और लोगों को भी ऐसा पाओगे जिनकी बज़ाहिर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेज़ी की तरफ लौटाए जाते हैं तो ऊंधे मुंह उसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी ना करें और तुमसे सुलह का सिलसिला न जारी करें, तो अपने हाथ ना रोक लें, तो उन्हें पकड़ो और मार डालो जहां कहीं भी पाओ। यही वो हैं जिन पर हमने तुम्हें ज़ाहिर हुज्जत अनायत फरमाई। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ज़ेबा नहीं देता, मगर अगर गलती से हो तो और बात है। काफिरों के लिए तलवार उठाने का कहा गया,
انہیں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائیں، اور جو نہ اٹھائیں انہیں نہیں چھیڑنا۔ اگر ایک ملک آپ کے خلاف سازش نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں۔ کیا پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ کون آپ کو مٹانا چاہتا ہے، کون آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، کون آپ کی ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سب پتا ہے، بس وہی بات کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم کافروں کی ساری باتیں مانتے جاتے ہیں، مانتے جاتے ہیں، مانتے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں میں بھی ایمان کی مضبوط قوت عطا کرے تاکہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہترین فیصلے لے سکیں۔ اس کے بعد عام مومن کسی دوسرے مومن کو قتل نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ غلطی سے ہو جائے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان کی گردن آزاد کرنا، ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی ہے۔ اور اب نا اس آیت میں سیاست سکھائی جا رہی ہے، یہ جو ہم نے تھوڑی سی آیات پڑھی نا کہ آپ نے معاشی معاملات کیسے حل کرنے ہیں، معاشرتی معاملات، پولیٹیکل سچویشن کیسے ہینڈل کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈز دی گئیں کہ آپ نے کس کے ساتھ جنگ کرنی، کس کے ساتھ نہیں کرنی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے اور بلا ارادہ قتل کرتا ہے تو بلا ارادہ قتل کرنے کی صورت میں ایک مسلمان غلام کو بھی آزاد کرے گا اور ساتھ وہ فدیہ بھی دے گا، وہ قصاص بھی دے گا۔ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی ان کی تو غیرت ہی مر گئی تھی جی، 2 لاکھ اور 6 لاکھ لے کے انہوں نے اپنے بھائی کا خون معاف کیا تو بہن کا خون معاف کیا۔ نہیں، بلا ارادہ ہو گیا تو بھی معافی، اور ارادے سے ہوا تو بھی آپ قصاص لے سکتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ قصاص میں ہمارے لیے زندگی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس جو اسے نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوب جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اور جو مومن کسی مومن کو قصداً قتل کرے گا، جان بوجھ کر قتل کرے گا، اس کی سزا دوزخ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 5 سزائیں یہاں بتا دی گئیں اس قتل کی جو جان بوجھ کے کیا گیا ہو۔ آج ہمارے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کتنی ہے، آج ہم روز سنتے ہیں۔ ہم کچھ عرصہ پہلے میں ایک گاؤں میں گئی تھی درس کے لیے، تو وہاں راستے میں جو ہمارے ساتھ گئے تھے گاڑی والے ڈرائیور، انہوں نے بتایا کہ ایک عورت نے اپنے دیور کے مطلب اپنے خاوند کے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو قتل کر دیا۔ یہ یہاں آگے کسی گاؤں سے حال سائڈ کا شاید واقعہ ہے۔ تو ایک عورت کیسے دل رکھ سکتی ہے، اور وہ بھی بیوی؟ اللہ کہہ رہا ہے جو قصدن قتل کرے گا، پلاننگ سے کیا نا، ارادے سے کیا، جو قصدن قتل کرے گا اس کی سزا، پہلی تو سزا دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، پھر اللہ کا غصہ بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی، اور اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اس عذاب کو تو آپ اور میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں بظاہر مسلمان ہے، چاہے وہ جو مرضی ہے کرے، آپ اور میں اسے جج نہیں کر سکتے۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے بھی ایسے ہی تم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہم تو تفتیش نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو ہمارے محلے میں کسی کے گھر میں ایک گاڑی آ جائے اور اس گاڑی میں آنے والے کا ہمیں نہ پتا ہو تو ہم تو پورے محلے میں بتاتے ہیں پتہ نہیں جی کون آیا تھا جی، اتنی بڑی گاڑی، ہمارے گھروں میں تو کوئی نہیں آتا جی، تو پھر ان کے گھر میں تو روز کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے جی۔ ہم بلا تحقیق، بلا جانے پہچانے اور باتوں کو غلط رنگ دے کر آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ تحقیق کے بغیر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، اور یاد رکھیں کبھی کسی کے کردار پہ بات نہ کریں۔ آپ کا جھگڑا بھی ہو جائے، آپ کی لڑائی بھی ہو جائے، کبھی کسی کے کیریکٹر پہ بات نہ کریں، چاہے آپ کو علم بھی ہو تب بھی۔ ہمیشہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا سیکھیں۔ ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت
संभालने और बचाने वाला बनाए। अपनी जानों और मालों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उज़र के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपनी मालों और जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बड़ी फजीलत दे रखी है। और यूं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन बैठे रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत रखी है। मुजाहिदीन के लिए फजीलत ज़्यादा। आप और मैं भी तो जिहाद कर रहे हैं, हम भी तो घर से निकल के कुरान सुनने आए। आप बताएं कि अगर हम यहाँ बैठकर कुरान सुन रहे हैं और साथ वाले घर में कोई अपने बेड पर सो रहा है, तो क्या आप और हम और वो बराबर हो सकते हैं? नहीं। जो अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे उसका अजर ज़रूर देंगे। और आपका और मेरा अगर दिल होता तो शायद हम घर बैठे रहते, लेकिन हमें इस कुरान की मोहब्बत लेकर आई है और हमें इस कुरान का जो है वो अल्लाह का बुलावा लेकर आया। हमारा दिल किया कि हम जाएं और सुने। तो अल्लाह कह रहा है कि जिहाद करने वालों का ज़्यादा अजर है। जो एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे जन्नत के रास्तों पर चला देता है। तो दुआ करें अल्लाह आपके और मेरे लिए भी जन्नत के रास्ते आसान करे। और क्या करता है, दराजातिम मिन्हु व मगफिरतम व रहमा, दर्जात की भी बुलंदी, बख्शिश भी मिलेगी और रहमत भी मिलेगी। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, और अल्लाह सुब्हानहू ताला तो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलक तरीकन यल्तमितु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। जो एक कदम इल्म के लिए आगे बढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे जन्नत के रास्तों पर चला देता है। आप और मैं भी तो इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, और हम इल्म हासिल करने आए हैं। और हदीस में आता है कि इल्म हासिल करने के लिए आने वालों के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआ करती हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको और मुझे हिम्मत दे कि हम अपनी जान खपा सकें इल्म के लिए, हमारे पाँव गर्द आलूद हों इस इल्म को हासिल करने के लिए। और फिर अल्लाह की तरफ से मर्तबे भी मिलेंगे, बख्शिश भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी और दर्जात की बुलंदी भी। और जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। यहाँ उन लोगों के बारे में तंबीह की गई कि जो दीन पे नहीं चलते और कहते हैं हमने तो किए ही कुछ नहीं। कितनी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा ही कोई नहीं, जी हमारे गांव में पढ़ाने वाला कोई नहीं था, फिर शादियां हो गई तो फिर बच्चे हो गए तो फिर टाइम नहीं मिला। अल्लाह कह रहा है फरिश्ते पूछेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी? क्या तुम्हें जगह नहीं पता थी? स्कूल के और बच्चों के लिए तो बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने के लिए तुम कितने किलोमीटर दूर जाते थे। शिफ्टें लगवाई हुई हैं स्कूल के लिए, शिफ्टें लगवाई हुई हैं कॉलेज के लिए, सिर्फ नहीं पढ़ने जा सके तो दीन पढ़ने नहीं जा सके। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुंचने की बुरी जगह। मगर जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो कोई चाराकार की ताकत और ना ही किसी रास्ते का इल्म, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह उनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला तो दरगुजर करने वाला और माफ़ करने वाला है। जो कोई अल्लाह के रास्ते में वतन को छोड़े, वो ज़मीन में बहुत सी क़याम की जगह पाएगा और कुशादगी भी पाएगा। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हो, फिर उसे मौत आ जाए, तो यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। और अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए जाना है तो अल्लाह के रास्ते में अगर मौत आ जाएगी तो अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। आप लोगों ने बनी इसराइल के उस शख्स का किस्सा सुना होगा जिसने 99 कत्ल किए थे, और वो एक राहिब के पास गया और उससे पूछा मुझे बताओ अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है 99 कत्ल करने वाले को अल्लाह माफ़ करे? उसने उसे भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल पूरे हो गए। आगे गया एक आलिम से पूछा तो एक आलिम ने कहा कि अल्लाह तो कहता है कि मैं माफ़ करूँगा, अल्लाह कहता है मैं शिर्क भी माफ़ कर दूँगा अगर माफ़ी मांगोगे तो। उसके अलावा तुम अल्लाह को राज़ी कर लो, लेकिन तुम वो बस्ती छोड़ दो जिस बस्ती में तुम्हें गुनाहों की रग़बत हो। और वो बस्ती छोड़ने के लिए चल पड़ा और अभी उसने तौबा नहीं की थी। उसके दिल ने इरादा कर लिया, उसके दिल ने अल्लाह को एक मान लिया और उसने इताअत पे सर झुका दिया, लेकिन अभी वो रास्ते में ही था और उसकी जान ख़त्म हो गई। और फिर फरिश्तों में झगड़ा हो गया, और एक जन्नत के फरिश्तों ने कहा कि हम इसकी रूह लेकर जाएंगे, और जहन्नम के फरिश्तों ने कहा हम रूह लेकर जाएंगे। फिर एक फरिश्ते ने कहा जगह नाप लो।
اللہ सुबहान व तआला के हुक्म से जिस तरफ वो जा रहा था उस तरफ की ज़मीन को जो है वो बढ़ा दिया गया। तो ये तो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कहता है कि अगर एक बंदा माफ़ी के लिए मेरे दरवाज़े पर आएगा, मैं उसे ज़रूर माफ़ करूँगा। जो मेरे लिए अपने रास्ते अपने घर को छोड़ेगा, अपने वतन को छोड़ेगा या अपनी जगह को छोड़ेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको क़याम की जगह भी देंगे और कुशादगियाँ भी। दुआ करें, ऐ अल्लाह हम तेरी खातिर अपने घरों को छोड़ कर आए, हमारे घरों में भी रहमतें दे, हमारे घरों में भी कुशादगियाँ दे, हमें दीन की जगहों पर जाकर बैठने वाला बना, हमें दीन की महफ़िलें नसीब कर। और जो कोई अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ और अगर उसे मौत आएगी तो फिर ज़ाहिर है मौत का भी अजर है। जब तुम सफ़र में जा रहे हो तो तुम पर नमाज़ों के कसर कर लेने में कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुम्हें सताएंगे, यकीनन काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जब तुम इनमें हो और उनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो। फिर जब वो सजदा कर चुके तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपने बचाव भी कर लो और अपना बचाओ और अपने हथियार लिए रहो। काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और सामानों से बेखबर हो जाओ तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। हाँ, अपने हथियार उतार रखने में उस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ हो या बारिश के सबब या बीमारी के सबब, और अपने बचाव की चीज़ें साथ लिए रखो। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनकरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटते हुए अल्लाह का जिक्र अदा करो और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज को कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। यहाँ बताया गया कि हालत जंग में भी नमाज आपने नहीं छोड़नी। सफ़र में नमाज की आप कसर करेंगे। बाद सहाबा को ये बात ज़हन में आई कि हमें सफ़र में नमाज कसर नहीं करनी चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये कसर नमाज अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए सदका है, लिहाजा इस सदक़े को कबूल करो। तो अगर आप सफ़र में हैं तो आप नमाज को कसर करेंगे। और बाकी जंग की सिचुएशन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन हालत जंग में भी नमाज माफ़ नहीं है। नमाज को उसके मुकर्रर वक्तों में आपने अदा करना है। हम घरों में हैं, हम हालत अमन में हैं तो हम नमाज को क़ज़ा नहीं कर सकते। सफ़र है, लंबा सफ़र है, जमा कर लें, जमा सलातैन कर लें। आप ज़ोहर असर मिला सकती हैं, मगरिब इशा मिला सकती हैं। यही दो दो नमाज़ें हैं जिनका फ़ासला है। फ़जर तो वैसे ही अलग है। आप सफ़र के लिए जाएंगे तो ज़ाहिर है फ़जर पढ़ के ही निकलेंगे, या अगर रास्ते में कहीं आ जाए, आजकल तो वैसे ट्रेन और गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं, मतलब सफ़र जितने भी लंबे हों बीच में कहीं ना कहीं स्टे बन जाता है, तो फ़र्ज़ की पकड़ होगी। फ़र्ज़ किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। इन लोगों का पीछा करने से दिल हारे होकर बैठे ना रहो। अगर तुम्हें बेआरामी होती तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें उन्हें नहीं, और अल्लाह ताला दाना और हकीम है। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक़ के साथ अपनी किताब को नाजिल किया ताकि तुम लोगों में उस चीज़ के मुताबिक फ़ैसला करो जिससे अल्लाह ने तुम्हें शनासा किया है, और ख़यानत करने वालों के हमायती ना बनो। दुनिया में रहना है तो हमें बददियांती से बचना होगा। आपने जब फ़ैसला करना है तो हक़ के साथ फ़ैसला करना है, क्योंकि अल्लाह ने किताब दे दी, अल्लाह ने हिकमत दे दी। और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगो। इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। और उनकी तरफ से झगड़ा ना करो जो खुद अपनी ही ख़यानत करते हैं। यकीनन दगाबाज अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। सोचिए ज़रा, मैं झगड़ा तो नहीं करती, मैं ख़यानत तो नहीं करती, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। अल्लाह कह रहे हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना ख़व्वानन असीमा, अल्लाह ताला को गुनाहगार और दगाबाज अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप में और मुझ में ये चीज़ें हैं तो हमें अपने आप से निकालनी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता करे, हमने दुआ की थी ना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बक, अल्लाह हमें तेरी मोहब्बत चाहिए। तो अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत चाहते हैं, हम हर वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगे। जैसे शादी के शुरू शुरू के दिनों में ना
औरत और मर्द क्या करते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के फेवरेट कलर पहनेंगे, एक दूसरे का फेवरेट खाना, बीवी वो खाना पकाएगी जो मियाँ को अच्छा लगता होगा, क्यों, उसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। मर्द की कोशिश होगी जब कभी बाहर से आए कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आए जिससे बीवी को पसंद। जब दो लोगों की मोहब्बत, यहाँ तो इंसानों की मैं बात कर रही हूँ ना, जब दो इंसानों को आपस में मोहब्बत होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अगले की पसंद का काम करें, और वो तो अल्लाह है, वो हमारा वो रब है। अगर हम उसका कुर्ब और उसकी मोहब्बत चाहते हैं, फिर हमें सोचना होगा कि हम हर वो काम करें जिससे हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो, और अल्लाह की मोहब्बत के लिए कोशिश करेंगे, वो ज़रूर अपनी मोहब्बतें अता करेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये कि हम उसकी इताअत करें और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलें। वो लोगों से तो छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह से वो नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उनके पास होता है, उनके तमाम आमाल को वो घेरे हुए है। यहाँ बात तो मुनाफिकीन की हुई कि मुनाफिकीन रातों में छुप कर खुफिया मशवरे करते थे। आज अगर हम अपने माशरे की बात करें तो हमारे माशरे में भी बहुत से काम रात के अंधेरे और तारीकी में हो रहे होते हैं, ऐसे खुफिया काम जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसे कामों के मशवरे हो रहे होते हैं जिसमें अल्लाह की नाफरमानियाँ होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं अल्लाह उनके पास होता है, वो उनके अमाल को घेर लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से छुप कर इंसान कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक गुनाह को क़यामत के दिन हमारे सामने लाएंगे। तो अल्लाह से इस दुआ के साथ अपने दिल को साफ़ करें कि ऐ अल्लाह जो गुज़र चुके वो माफ़ कर दीजिएगा, आगे हिम्मत दीजिएगा। अकेले हों, हम तन्हाई में हों या हम लोगों के दरमियान हों, हमारी खलवत और हमारी जलवत दोनों में हमें तेरा डर रहे। हम दोनों में तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानी करने वाले ना बने। हाँ, तो ये तो हो तुम लोग कि दुनिया में तुमने इनकी हिमायत की, लेकिन अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन इनकी हिमायत कौन करेगा, और वो कौन है जो इनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है, और उस हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जो भी जाएगा महज अल्लाह की रहमत से जाएगा, अपने अमल की वजह से नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अंत, आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जब तक अल्लाह मुझे अपने दामाने रहमत में ढांप ना लेगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। सही बुखारी की ये रिवायत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो बंदा, यहूद व नसारा कहते थे हम जन्नत में जाएंगे, जैसे आज हमारा हर फिरका कहता है हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जन्नत में वही जाएगा जो अपने अमाल सही लेकर जाएगा। अगर अमाल सही नहीं होंगे, अमाल अच्छे नहीं होंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कोई शिफात भी नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह कह रहा है तुम दुनिया में तो इनकी हिमायत कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन इनकी हिमायत कौन करेगा? कौन है जो अल्लाह के सामने उनका वकील बनकर खड़ा हो? जो शख्स कोई बुराई करे, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जो शख्स बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे, गलती हो गई, गुनाह हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह कह रहे हैं इस्तगफार कर लो, अल्लाह बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह को तुम फिर बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला ही पाओगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बुराइयां इंसान की गिन कर भी हमें पैगाम एक ही दिया कि गलती हो जाएगी, बहैसियत इंसान हो जाएंगी गलतियां, कहीं ना कहीं पाँव फिसल जाएंगे, कहीं ना कहीं गुनाहों में पड़ जाओगे। करो क्या, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर तुम अल्लाह से इस्तगफार कर लेना, अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 80 से लेकर और 70 का शायद लफ्ज़ आता है, 70-80 से लेकर 100 तक इस्तगफार वो डेली किया करते थे, और वो अल्लाह से बख्शिश मांगते थे। तो आप और मैं, हमारा काम भी है कि हम इस्तगफार की कसरत करें। अल्लाह ने शर्त रखी तौबा की, इंसानों के सामने गुनाहों का इकरार करना अल्लाह ने शर्त नहीं रखी। अल्लाह ने ये नहीं कहा गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, जाओ सारों को बताओ हाय मैं इतनी गुनाहगार, हाय मैं ऐसी, हाय मैं वैसी, नहीं। अल्लाह कह रहे हैं बुराई कर लो, गलती हो जाए,
استغفار کر لو. اگر تم میرے سے بخشش مانگو گے تو پھر تم مجھے بخشنے والا اور مہربان ہی پاؤ گے. اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے. اللہ تو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے ہم میں سے کون کتنا گنہگار ہے. اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ ڈال دے. اب اگلا کام جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، غلطی اپنی، گناہ اپنا. اللہ کہہ رہا ہے کسی اور کے ذمہ تھوپ دو. اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور یہ کھلا گناہ ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، اسکول میں بچے کسی کا لنچ کھا لیا تو کیا کہتے ہیں، میں نے نہیں کھایا، اس نے کھایا. یہ ایک چھوٹی سی نارمل سی مثال دے رہی ہوں. گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر ایک عورت سے، ایک بہن سے غلطی ہو جاتی ہے تو دوسری بہن اس پہ الزام لگا دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے اپنے معاشرے کی باتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسا کرو گے تو اس کا مطلب تم نے بڑا بہتان لگایا اور تم نے کھلا گناہ کیا. اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر کتاب حکمت کے ساتھ اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ پر بڑا ہی فضل ہے. ان کے لوگوں کی خفیہ سازشوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دے. اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بڑا ثواب دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے محفل میں سرگوشی نہیں کرنی. اگر محفل میں سرگوشی اس لیے کی جائے کہ کوئی نیکی کی بات کہنی ہو یا کسی کے ساتھ صلح کرنی ہو، اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ خفیہ سازشوں والی بات یہ ناپسندیدہ ہے. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے گا اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے گا، ہم اسے ادھر ہی متوجہ رکھیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور ہم دوزخ میں ڈال دیں گے. وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہندو بت پرست جو جس سے مانگتا ہے اللہ اسے اسی چیز کے حوالے کر دیتے ہیں. قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ جس طرف جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرف انسان کو لگا دیتے ہیں اور اسی سے اس کو پھر چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. جو بندہ اپنے دماغ میں غلط باتیں سوچتا ہے تو وہ ویسا ہی ہو بھی جاتا ہے. ہندو پتھروں سے مانگتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے، انہی کے طریقے سے دیتا ہے، ان کا ایمان اسی پہ مضبوط ہو جاتا ہے. آپ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پوری کی پوری توجہ اپنی ذات کی طرف رکھیں تاکہ آپ اور میں شرک سے بچیں. کیونکہ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا. ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا. اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. شرک کبھی بھی معاف نہیں ہے، اور اگر شرک کیا جائے گا تو معافی مانگیں گے تو معاف ہوگا، بغیر معافی کے نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں. یہاں بات آ رہی ہے ہندوؤں کی، اور انہوں نے جو اپنے بت رکھے ہوئے تھے، اناث عورتیں کہتے ہیں، مطلب اناث کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، اور انہوں نے اپنے جو بت رکھے ہوئے تھے لات اور عزا اور منات اور نائلہ، یہ سارے کے سارے عورتوں کے نام تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو خود عورتوں کے نام رکھ کے بتوں کو پکارتے ہیں اور یہ سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا. اب وہ آیت جس کو آپ نے اور میں نے بہت غور سے سننا، اپنے اپنے قرآن پاک میں اس کو ہائی لائٹ کریے گا. آیت نمبر ہے 119 سورہ النساء. شیطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راستے سے بہکاتا رہوں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ سخت نقصان میں ڈوبے گا.
शैतान बहकाता रहेगा, झूठी उम्मीदें दिलाता रहेगा। कलमा पढ़ती हो ना जन्नत में जाओगी, खैर है नमाज ना पढ़ी कोई बात नहीं, अच्छा हो तो नबी की उम्मती ना तो कोई बात नहीं, बेशक जिससे मर्जी है दोस्ती कर लो, जो मर्जी है गुनाह कर लो, अच्छा माँ बाप की नाफरमानी कर लो, कोई बात नहीं, उम्मत मुस्लिमा से हो ना जन्नत में ही जाओगी। शैतान का बहकावा है, बातिल उम्मीदें हैं। अच्छा खामन के लिए सजती हो, खामन के लिए प्लकिंग करती हो, खामन के लिए वैक्सिंग थ्रेडिंग करती हो, कोई बात नहीं कर लो, अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह को बताना मैंने अपने पिया जी के लिए किया था। शैतान की उम्मीदें हैं। अल्लाह कह रहा है मैं इन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें और उनसे कहूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरतें बिगाड़ दें। आप और मैं, हम अगर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ज़ात को देखें ना, अपने आप को देखें, हम बहुत खूबसूरत हैं। इंसान जैसी खूबसूरत मखलूक आपको दुनिया में कोई नज़र नहीं आती। हम बहुत खूबसूरत हैं। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम कहें कि हम सेंटर से हटाते हैं या हम साइडों से हटाते हैं या हम बाजुओं के बाल हटाते हैं। आप बाजुओं के बाल हटाएंगी या टांगों के बाल हटाएंगी ना तो आपका दिल करेगा आप वो कपड़े पहने जिसमें से पूरा बाजू नज़र आए। क्यों? इतने पैसे लगा के तो वैक्सिंग कराई और फिर कोई देखे भी ना कि बाल नहीं है। तो शैतान आपको और मुझे बहकाएगा। वो कह रहा है मैं इनको बहकाऊंगा, मैं इन्हें तेरे रास्ते से हटाऊंगा। आपने और मैंने इस वार्निंग को याद रखना। जहाँ कहीं गुनाह ज़हन में आए ना, जहाँ कहीं गुनाह करने का दिल भी करे, जहाँ कहीं लगे मैं शादी में सबसे प्यारी लगूं लिहाजा मेरे बाजू नहीं होने चाहिए, वहाँ इस आयत को याद रखिएगा। ये बहकावे शैतान के हैं। कुछ नहीं होता, औरतों का फंक्शन है, अच्छा कुछ नहीं होता, बाजू ना भी हुए तो क्या वहाँ कौन सा कोई मर्द होगा। ये शैतान का बहकावा है। अल्लाह आपको और मुझे हिदायत दे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों और बच्चियों को हिदायत दे। आज वो वक्त आ गया है, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हो रही हैं, औरतें अपने मुंह की सर्जरीज़ करवा रही हैं और अपने जिस्म की सर्जरीज़ करवा रही हैं सिर्फ अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आज वो वक्त आ गया है, औरतें मर्द बन रही हैं और मर्द औरतें बन रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इस माशरे को इस्लामी इक़दार नाफिज करने वाला बनाए ताकि हमें इन गुनाहों से आगाही हो कि अल्लाह ने जो तख्लीक किया वो बेहतरीन किया। अल्लाह से अच्छा तख्लीक करने वाला कोई नहीं। शैतान कह रहा है कि मैं इन्हें बहकाऊंगा। अल्लाह क्या कह रहा है? वो इनसे ज़ुबानी वादे करता रहेगा और इन्हें सब्ज बाग दिखाता रहेगा। मगर याद रखो शैतान के ये जो वादे हैं इनसे वो सरासर फरेबकारियां हैं। ये झूठ कहता है शैतान कि ऐसे ही अल्लाह बख्श देगा, ऐसे अल्लाह नहीं बख्शेगा। ये वो लोग हैं उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ये जहन्नम में जाएंगे और वला यजिदून अन्हा महीसा, इन्हें जहन्नम से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर जिसे फिर अल्लाह जहन्नम में डालेगा, फिर आप जो मर्जी शैतानी काम करते रहें, जब आप जहन्नम में चले जाएंगे फिर अल्लाह कह रहा है फिर जगह कोई नहीं निकलने की, फिर अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। लेकिन उसके मुकाबले में वल्लदीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, जो ईमान लाएंगे नेक काम करेंगे हम उन्हें उन जन्नतों में लेकर जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ ये हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का वादा है जो सरासर सच है। और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा हो। अल्लाह आपको और मुझे तसल्ली दे रहे हैं, अगर ईमान लाओगी अमल साले करोगी तो फिर जन्नत ही मिलेगी। फिर यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में लेकर जाएगा। मोमिन का जो हाल है ना वो उम्मीद और खौफ दोनों वाला होता है। हज़रत उमर के बारे में आता है, वो कहते हैं कि अगर मुझे, मैं उम्मीद और खौफ की उस हालत में हूँ कि अगर मुझे ये पता चले कि जन्नत में जाने वाला आखिरी एक शख्स बचा है तो मैं उम्मीद करूँगा वो आखिरी शख्स मैं हूँ, और अगर मुझे पता लगे कि जहन्नम में जाने वाला आखिरी शख्स एक बचा है तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं हूँ, मैं खौफ रखूँगा कि वो मैं हूँ। तो उम्मीद और खौफ दोनों मोमिन का हाल है। आप और मैं अल्लाह से डरेंगे, खौफ खाएंगे तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। अगर आप और मैं अल्लाह से डरेंगे नहीं, हम खौफ नहीं खाएंगे तो हम सीधे रास्ते पर कभी भी नहीं चल सकते। अगर हमें किसी का डर ना हो तो हम कैसे सीधे रास्ते पे चलेंगे। हम आज तो वो माहौल देखते हैं कि बच्चियां घरों से अबाई पहन कर जाती हैं और हॉस्टल्स में जाके अबाई भी उतर जाते हैं और दुपट्टे भी उतर जाते हैं, और वहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी वो टाइट्स और जीन्स में जा रही होती हैं और शॉर्ट्स में जा रही होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नेक काम करने वाला बनाए। हमें माँ बाप का डर ना हो, हमें अल्लाह का डर हो। हमें खामद का डर ना हो, हमें अल्लाह का डर हो। एक अल्लाह का डर ही है जो एक बच्ची को अपने माँ बाप की इज़्ज़त की हिफाजत और अपने शोहर की इज़्ज़त की
کی حفاظت کرنے والا بناتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ ڈر نصیب کرے، اور حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی مدد کرے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کہا چاہے اہل کتاب ہوں چاہے تم، سب کو اللہ تعالیٰ نے گنا، آپ ہوں، میں ہوں، یا اہل کتاب یہود نصارہ ہندو عیسائی جو بھی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے جو برا کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن جو ایمان والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک کام کرے تو یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر شگاف دیکھا ہے کسی نے؟ گٹھلی آپ کھجور کھاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اور پتلی سی طے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شگاف۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے برابر بھی میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ظلم کوئی نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اتنا بھی حق مارا جائے گا۔ اگر آپ اور میں نیکی کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نیکی کا ہمیں صلہ نہیں ملا، ہم نے ایک بندے کے ساتھ اتنا کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، انسان کو دکھ ہوتا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے میں اتنا حق بھی نہیں ماروں گا، میرے لیے کیا، نیت خالص تھی، اجر ملے گا۔ با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرے اور وہ نیک ہو، اور یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے مردوں کو ایک اور فتویٰ دے رہے ہیں، اور وہ کیا؟ اللہ فتویٰ دیتا ہے، آیت نمبر ہے 127، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور وہ قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ دو کمزور ہستیاں ہیں ہمارے معاشرے کی، ایک یتیم اور ایک عورت، دونوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان سے اچھا سلوک کرو، ان کا حق نہ مارو۔ اگر کسی عورت کو، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب اگر کوئی یتیم لڑکی ہوگی، بعض دفعہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ولی یا اس کے ساتھ جو وراثت میں شریک لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، اور کہیں اور نکاح کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبردستی ان سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ ساری کی ساری جائیداد ہمارے گھر میں آ جائے، تاکہ ہماری جو زمینیں ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یتیم عورت کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہیں کریں۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے خبردار ہے۔ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو پسند نہ کرے اور وہ اس سے اعراض برتے اور دور رہے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم تر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے، تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر خاوند سے مصالحت کر لے۔ اگر وہ ایسے مصالحت کر لیتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنی جو باری تھی وہ اماں عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ تم سے یہ نہ تو کبھی یہ نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، اللہ کہہ رہا ہے تم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ایک ہی کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر ادھر لٹکتا ہوا نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا نا مردوں کو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ عدل ضروری ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ دل ایک کی طرف ہی جائے گا، اگر دل ایک کی طرف نہ جائے تو مرد دوسری شادی کیوں کرے؟ ایک بیوی ہوتے ہوئے ایک مرد دوسری شادی کی خواہش کیوں کرے گا؟
اس لیے نا کہ اس دوسری اچھی لگ گئی، اور اگر اچھی لگ گئی تو اللہ کہہ رہا ہے عدل کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ تم مائل ہو جاؤ گے دوسری کی طرف، لیکن ایسا نہ کرنا کہ ایک کی طرف ہی جھک جاؤ۔ اور ہمارے معاشرے میں یہی تو ہوتا ہے، ایک بیوی 15 سال 20 سال زندگی کے وفاداری سے شوہر کو دیتی ہے، اور شوہر کسی اور عورت کے پیچھے لگ کے اس سے شادی تو کرتا ہی کرتا ہے، پہلی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جانے اور اس کے کام جانے، یا اگر نہ بھی چھوڑے تو اس کے گھر آنا چھوڑ دیتا ہے، بچوں کا خرچہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو وارننگ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ عدل ضروری ہے، منصف ہو کر رہنا۔ جذباتی جھکاؤ ہوگا، جذباتی جھکاؤ معاف ہے، لیکن آپ نے باقی چیزیں ضرور کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اماں عائشہ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، عائشہ کے معاملے میں میرے دل کو نہ پکڑنا۔ مطلب دل میں رجحان ایک بیوی کی طرف جانا فطری ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک کی طرف رجحان گیا تو آپ نے اس کی باری بھی چھوڑ دی، آپ نے اس کو خرچہ دینا، نان نفقہ دینا بھی چھوڑ دیا۔ یہ چیز اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے یہ بات پہلے ہی کی کہ محبت صرف نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نکاح ختم ہو جاتا ہے تو 20 سال کی بھی محبت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ محبت نکاح، اللہ کہہ رہا ہے میں دلوں کو ہٹا دیتا ہوں، بے نیاز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ زمین اور آسمان کی چیز، زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا، تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے اختیار میں آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہیں، اللہ ہی کارساز ہے، تو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لہٰذا کارساز وہی ہے، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ایک زلزلے سے زمین ہلاتا ہے تو ساری کی ساری آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک قوم پہ عذاب لاتا ہے تو اس کی جگہ نئی قوم آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے اختیار میں ہے، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لے آئے۔ تو جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ تو بہت بخشنے والا، سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دنیا اور آخرت میں عزت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پھرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اللہ چاہے تو آپ کو اور مجھے یہاں سے اٹھنا بھی نصیب نہ کرے، لیکن اللہ کی رحمت وہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا عزیز رشتہ داروں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو یاد رکھو جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ نے کہا عدل اور انصاف پر قائم رکھنا ہے۔ آپ سے غلطی ہو جائے مان لیں، اگر سوری نہ کر سکیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اس غلطی کو جب بڑھاوا دیا جاتا ہے تو بات جب معافی تلافی پہ آتی ہے تو ہمارے گھروں میں، آپ کے اور میرے گھر کی بات کروں گی، ہمارے اپنے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ غلطی بیٹی کی ہوتی ہے اور معافی بہو مانگ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ غلطی جو ہے وہ بہو کی ہوتی ہے اور معافی ماں مانگ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں۔
हमें पता होता है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चाहे तुम सच्ची गवाही देने वाले बनो, चाहे वो खुद तुम्हारे खिलाफ हो या तुम्हारे माँ बाप के या तुम्हारे रिश्तेदारों के। बाज़ दफ़ा आपका भाई गलत हो सकता है, बाज़ दफ़ा बहन गलत हो सकती है, बाज़ दफ़ा शोहर गलत हो सकता है, बाज़ दफ़ा वालिदैन भी गलत हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जो गलत है उसके खिलाफ गवाही देते हुए इंसाफ का दामन पकड़ो। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी, अब तो अम्मी बड़ी हैं तो अम्मी को कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। अगर अम्मी बड़ी हैं तो जिसको आप सामने कर रहे हैं वो भी आपकी बीवी है, वो भी आपके निकाह में है। बाज़ दफ़ा हम रिश्तों को बचाते हुए दिलों को तोड़ देते हैं। हम झूठी गवाहियों पर हम अपने फैसले सुना देते हैं। अल्लाह को ये चीज़ नहीं पसंद। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके और मेरे घर में सिर्फ मोहब्बतें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे घर के मामलात हैं तो घर में वालिदैन को भी पता होता है। बाज़ दफ़ा एक भाई दूसरे भाई पर ज़्यादती कर रहा होता है, एक बेटा दूसरे बेटे का हक मार रहा होता है और वालिदैन खामोश होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो हक मार रहा है हमें उसने रखा हुआ है, हमारी रोटी वो दे रहा है। तो बाज़ दफ़ा वालिदैन अपने खाने पीने के चक्कर में उस इंसाफ को भूल जाते हैं। बाज़ दफ़ा बेटे बेटियों का हक मार रहे होते हैं, भाई बहनों का हक मार रहे होते हैं और वालिदैन चुप होते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह ने आपको और मुझे बताया कि आपने और मैंने गलती को पॉइंट आउट भी करना है और फिर उस पर अदल के साथ जमना भी है। चाहे हमारा कोई भी रिश्ता सामने हो, जहां आपको लगे कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा या आपकी फैमिली में किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मसलन फर्ज करें आपकी भाभी हैं, गलती अब आपकी अम्मी की है और इल्ज़ाम आ रहा है आपकी भाभी पर और आपका भाई बैठा है इंसाफ करने, तो उन्हें बता दें कि अम्मी की गलती है। ये तो मैं एक नॉर्मल सी मिसाल दे रही हूँ। हमारे घरों में ये रोज़ होता है। रोज़ ऐसा होता है, एक भाई की गलती पे दूसरे को मार पड़ी होती है और बाद में जाके पता चलता है कि जी गलती तो इस बच्चे की थी ही नहीं। ठीक है, और बच्ची को बाहर से सुन के आते हैं, कोई दरवाजे पे आ गया तो बच्ची को पीट दिया, तो बाद में पता चलता है कि वो तो था ही, बाहर वाला लोफर था, अपनी बच्ची तो ठीक थी। तो बाज़ दफ़ा हम जल्दबाजी करते हैं। हमने इंसाफ के साथ चलना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में हमें बहुत से अहकामात दिए, हमने उन अहकामात को समझना है। ए ईमान वालों, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी और उन किताबों पर जो उससे पहले उसने नाजिल फरमाई, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके फरिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफ़र करे तो वो बड़ी गुमराही में है। आपको याद होगा बचपन में हमें ईमान मुफ़स्सिल पढ़ाया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि अल्लाह पर भी ईमान लाना है और ये ईमान दो तरह का है। एक है ज़ुबान से इकरार करना, दूसरा है अमल से उसका इज़हार करना। और बाअमल मोमिन वही होगा जिसका ईमान उसके अमल से छलकेगा, जिसके अमल में ढलेगा। आपने और मैंने अपने अमल में ईमान को ढालना। आप देखें ना कि ईमान की तारीफ़ को देखें तो वहाँ क्या आता है कि ईमान क्या है? इकरार बिल लिसान, ज़ुबान से इकरार करना, व तस्दीकुम बिल कल्ब, और कल्ब से यानी दिल से उसकी तस्दीक करना। आपका और मेरा दिल तो तस्दीक करता है नमाज़ें 5 हैं, लेकिन हम पढ़ते पूरी नहीं। आपका मेरा दिल तो तस्दीक करता है किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, और बाद में बदतमीज़ी कर देते हैं और लॉजिक के अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो शैतान वाली बात, शैतान हमें हमारे दिमागों में इतना चढ़ गया है, हम कहते हैं क्या करूं भाई, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता, मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल जाता है। कहते हैं ना हम, मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो किसी की गलत बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। मैं तो भाई फिर जब तक उसको उतना जवाब ना दे दूं तो फिर मैं तो रह ही नहीं सकती। अल्लाह ने कहा कि अगर दिल से तस्दीक कर ली तो दिल से तस्दीक करने के बाद फिर उसको अमल में भी ढालना है, फिर सब्र भी करना है। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और फिर कुफर किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में बढ़ गए, तो अल्लाह ताला यकीनन उन्हें ना बख्शेगा और ना ही उन्हें हिदायत देगा। मुनाफिकों को इसकी खबर पहुंचा दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है। जिनकी ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या उनके पास ये इज्जत तलाश करने जाते हैं? तो ये याद रखें, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के कब्ज़े में है। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो उस मजमे में उनके साथ ना बैठो। बहुत ज़्यादा गौर करने वाली आयत है। अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम किसी मजलिस वालों को अल्लाह की आयत के साथ कुफर करते
اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس کا حصہ نہ بنو۔ جس مجلس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اس محفل کا حصہ نہ بنو۔ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں نہ بیٹھو، اور جب تک وہ اس کے علاوہ کوئی اور باتیں نہ کریں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور تمام کے تمام منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کے خلاف باتیں کون کرتا ہے؟ عالم یا جاہل ہے؟ کون کرتا ہے؟ دین کے خلاف زیادہ باتیں کون کرتا ہے؟ دین کے خلاف ہمارے ہاں زیادہ تر باتیں کی جاتی ہیں اور آپ اور میں سب جانتے ہیں۔ پھر دین کے خلاف ایسے ایسے پوسٹ لگائی جاتی ہیں، ایسے ایسے لطیفے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو فارورڈ کیا جاتا ہے اور دین کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے کہ آپ کو اور مجھے روز میسج آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی اچھی چیز بھی ہے، دعا بھی ہے، کچھ بھی ہے، یہ خود بھی پڑھیں تو 100 لوگوں کو بھی بھیجیں، تو 10 لوگوں کو بھی بھیجیں اور 30 لوگوں کو بھی بھیجیں، اور اگر آپ آگے نہیں بھیجیں گے تو آپ پہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اور اگر آپ نے 10 لوگوں کو فارورڈ کیا یا 30 کو کیا آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ تو یہ دین کا مذاق ہے۔ آپ وہ کام کریں جو شریعت میں ہے، آپ وہ کام کریں جو دین کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں دین میں یہ چیز ہے ہی نہیں اور آپ آگے پہنچا رہے ہیں، اور پھر تمہیں میری قسم تو مجھے تمہاری قسم، تو آگے یہ کرو تو وہ کرو، یہ چیزیں غلط ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس جب کوئی اسلامی چیز آتی ہے اور اس پہ لطیفے بنے ہوتے ہیں، ہم ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، آگے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہے آج یہ نیا لطیفہ آیا ہے مولویوں پہ، ٹھیک ہے، مولوی ہیں تو حلوے کھائیں گے تو پتہ نہیں تھالیاں ہوں گی تو کیا کچھ، تو نہیں کریں ایسا۔ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، جنت ہے یا جہنم ہے، روزے ہیں یا حج ہے یا جہاد ہے، کسی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کبھی بھی بات نہ کریں، اور ایسی کوئی بھی بات نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں۔ آپ کسی عورت کو عبائے میں یا حجاب میں جا کے دیکھتے ہیں تو فوراً اس پہ بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی محفلوں میں بھی مت بیٹھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اس دعوت میں بھی شریک نہ ہو جس میں جو ہے وہ ایسا کوئی غلط کام ہو رہا ہو۔ اس حدیث میں تو شراب کے الفاظ آتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی اگر کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے، ہمارا کام ہے ہم اس محفل کا حصہ نہ بنیں۔ یہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا تم ہمارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا۔ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، منافق کی عادت ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے منافق کی ایک عادت بتائی کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب رک کے ذرا سوچیں، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں کیسی کھڑی ہوتی ہوں؟ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہوں، آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے نا، ہمیں کیا پتا کون منافق ہے کون نہیں۔ آپ اور میں تو اپنے آپ کو ٹٹولیں گے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ڈھیلا ڈھالا، ہم کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھے ہیں تو کندھے لٹک رہے ہیں تو ہاتھ ایسے ڈھیلے ڈھالے باندھے ہوئے، اس کے بعد کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب اچھا امی نے پوچھ لیا تو جائے نماز پہ بیٹھ گئے اور نہ پوچھا تو چھوڑ دی۔ اسی طرح اللہ کی یاد تو چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ ہم خوف خدا سے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اپنی اپنی نمازوں کو آپ نے اور میں نے جج کرنا۔ میری نمازوں کا حال کیا میں جب جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ کیا میرا دل کرتا ہے اذان سن کے کہ میں اٹھوں اور فوراً سے نماز پڑھوں؟ کیونکہ منافق کے بارے میں آتا ہے کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے، تو کہیں میری فجر رہ تو نہیں جاتی، کہیں میں عشاء چھوڑ تو نہیں دیتی۔ اگر میں عشاء یا فجر چھوڑتی ہوں تو میں اپنے آپ کو کس
कैटेगरी में पाती हूँ। और ये याद रखें कि हदीस में आता है कि ये मुनाफिक की नमाज है, और 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिक की नमाज है कि बैठा हुआ सूरज का इंतज़ार करता रहे, यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान यानी गुरूब के वक्त हो जाता है तो उठता है और 4 ठोंके मारता है। ये असर की नमाज के बारे में आ रहा है। असर की नमाज बहुत से लोग लेट कर देते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो अक्सरियत ही लेट पड़ती है। तो जैसे ही वक्त हो फ़ौरन से नमाज पढ़ें, कोशिश करें कि वक्त पर नमाज को अदा करें ताकि हम इस चीज़ से महफूज रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुनाफ़िक़त से महफूज रखे। वो दरमियान ही में मोहल्लक डगमगा रहे, ना पूरे उनकी तरफ, ना सही तौर पर उनकी तरफ, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो उसके लिए तुम कोई राह नहीं पाओगे। ए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? मुनाफिक तो यकीनन जहन्नम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे। इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन यकीनन जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे और नामुमकिन है कि तुम उनके लिए कोई मददगार पाओ, हाँ सिवाय उसके जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और ख़ास अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को बड़ा अजर देगा। अल्लाह ने कहा कि तौबा के साथ शराइत हैं। अल्लाह ताला आखिरी आयत में आपको और मुझे एक बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करो और तुम ईमान ले आओ। अगर आप और मैं ईमान रखते हैं, आप और मैं अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह हमें क्यों जहन्नम में डालेगा? सिंपल सी बात है ना। अल्लाह कह रहा है मैं क्यों ऐसा करूंगा, मैं क्यों तुम्हें सजा दूंगा अगर तुम शुक्र करते रहो, अगर तुम ईमान की हालत में रहो। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तो इतनी ज्यादा कदर करने वाला है। अल्लाह तो जानता है जब तुम शुक्र करोगी तो क्यों अल्लाह तुम्हें सजा देगा। आप और मैं अगर शुक्र करते रहेंगे तो अल्लाह तो हमें बिल्कुल सज़ा नहीं देगा। क्यों वो सज़ा देगा हमें? जब हम उसके अहकामात पे चलेंगे। अगर एक शख्स कलमा पढ़ता है, कलमे के तकाज़े पूरे करता है, हदीस में आता है उसके लिए जहन्नम हराम है। अल्लाह ने, हमने पीछे पढ़ा कि हाँ, अल्लाह ने जहन्नम हमारे लिए नहीं बनाई। अल्लाह ने जहन्नम काफिरों के लिए बनाई है। अल्लाह ने आपके और मेरे लिए तो वो जन्नतें बनाई हैं। तो अगर हम चलते रहेंगे तो उसके रास्ते पर, तो क्यों वो हमें जहन्नम में डालेगा। और जहन्नम जो जाएगा वो अपनी मर्जी से जाएगा, वो अपनी मर्जी से जाएगा। हमने बस एक हदीस सुन ली है कि कलमा पढ़ने वाला बिल आखिर जन्नत में जाएगा और हम उसी पे इक्तफा किए हुए हैं कि खैर है, कभी ना कभी तो जहन्नम से निकलेंगे ना, कभी ना कभी तो जन्नत में जाएंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दिमाग को खोले कि आपने और मैंने अल्लाह का शुक्र करना, हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र। और अगर मैं तेरा शुक्र करूंगी तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला इस ईमान और शुक्र के साथ आपको और मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक। ए अल्लाह मेरे दिलों को निफाक से पाक कर दे, व आमालिना मिनर रिया। और अल्लाह आपके और मेरे अमाल को रियाकारी से महफूज रखे, लिसानना मिनल कज़िब। और अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को झूठ से महफूज रखे, व अयुनिना मिनल खियाना। अल्लाह आपकी और मेरी आँखों की खयानत माफ़ करे। फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाह आँखों की खयानत और दिलों के भेद खूब जानता है। अल्लाह को पता है दिलों की खयानत क्या। हदीस में आता है कि इंसान के जिस्म का हर उज़्व ज़ना करता है, और आँख भी ज़ना करती है और हाथ भी ज़ना करता है। अगर दिल ने किसी के बारे में गलत ख्वाहिश की तो वो दिल का ज़ना हो गया। अगर हाथ ने किसी को छुआ गलत तरीके से तो वो हाथ का ज़ना हो गया। आँख ने किसी को लज्जत से देखा तो वो आँख का ज़ना हो गया। और शर्मगाह फिर उसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। आखिर हद जारी होती है उस वक्त जब आप कोई इंतहाई बुरा कदम उठाते हैं, लेकिन उसकी तरफ चल कर जाने के लिए जो काम किए जाते हैं उन पर भी गुनाह है। आपने और मैंने अपनी आँखों को और अपने दिलों को पाक करना है। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, दिल और आँखें। दिल अगर किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करेगा तो आँखों ने जो मर्जी देख लिया, कुछ नहीं हो सकता। और अगर आँखें किसी लस्ट में पड़ गईं, आँखों को किसी चीज़ का चस्का लग गया, आँखों को किसी चीज़ को देखने की आरज़ू लग गई और आपके दिल ने उसका साथ दे दिया,
تو پھر سمجھیں قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی آنکھوں کی خیانت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اچھی چیز دکھائے۔ آج کل کے معاشرے میں جتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو ان سے بچا نہیں سکتے۔ جتنی مرضی ریسٹرکشنز آپ اپنے موبائل پہ لگا لیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا بچے دیکھ لیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت پر لگائے، ہمیں اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو آنکھوں کی اور دلوں کی خیانت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اس دین پر چلنے والا بنائے، اس دین پر چلنا آسان فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اپنے پیارے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بیٹیوں کو حیا نصیب کرے اور ہماری بیٹیوں کو بہترین بیٹیاں بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ کہا گیا تھا نا کہ عورت پر حیا کی چادر ایسے اچھی لگتی ہے جیسے قرآن پاک پر ایک غلاف اچھا لگتا ہے۔ اور آدم کی بیٹی کے بارے میں تو بہت سے لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں کہ تجھے سجنے کی ضرورت نہیں اے بنت ہوا، تجھ پر سجتی ہے حیا بھی زیور کی طرح۔ تو عورت پر تو حیا ہی زیور کی طرح سجتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو باحیا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔